ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज हम कोड शेफ स्टार्टर 107 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम मिनिमल एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमको एक एक्सप्रेशन गिवन था, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड के इंटू एन माइनस एक्स मॉड के। और इसमें हमको इसके लिए एन और के की वैल्यू गिवन थी और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी सच दैट इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, ओवरऑल एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू एन होनी चाहिए, है ना। तो और यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल आंसर्स होंगे, तो वी कैन प्रिंट एनी वन ऑफ दोज आंसर्स। तो लेट मी कॉपी paste this expression in my whiteboard. Okay, so like this is our expression mainly. Okay, let us take an like a good test case in which we can see all the trends. So let me take the value of k as we can say 8. Okay, 8, and then and the value of n we can take as 5. I think, yeah, 5 would be good. No, let us take a larger value. So 10, we can take a value 10. Okay, so the value is 10. K's value is 8 and n value is 10. Okay, so what are the numbers we can choose? According to the problem statement, we can choose the x like from 0 to n. Okay, 10. So we can go up to 10. Okay, we can go up to 10. Wait a second, let me erase these numbers. Okay, so we can go from 0 to 10. Okay, so what will happen in this case is like when we'll mod any x from 8, like 8 mod 0 mod 8 will be 0, 1 mod 8 will be 1, 2 mod 8 will be 2, and till like 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, and then this pattern will repeat itself. So like 7, after this the 8 mod 8 will be 0, 8 mod 9 will be like 8 mod 9 will be 1, and then so on. Okay, so we don't have to look at these numbers, we'll only see till this number because this thing will repeat itself. So now we have to see this n minus x mod k. Okay, n minus x mod k. So n minus x, like first our x was 0, and then n minus x, what is the value of n minus x? 10 minus 0 is 10, and mod 8 it is 2. Okay, now value for x is 1, and n minus 1 is 9, and 9 minus 9 mod 8 is 1. Okay, now the value is 2, and 2 minus 10 is 8, and 8 mod it is 0. Okay, so we can see the numbers are decreasing. So now what will happen, let's see. After 0, 10 minus 3 is 7, so here is 7, and then these numbers will go on decreasing, like 7, 6, 5, 7, 3, 4, 5, 4, 3. Okay, then again 2, for 0 it will be 2, and for 1 it will be 1. So this pattern will repeat itself. So we can see like 0, 2, 0, 1, and here it's like same 0, 2 and 0, 1. So this pattern will repeat itself. So we have to find the answer till this. Okay, so this problem would be easy if our if our case constraints would be like less. Okay, but in the problem the k is 10 raised to power 9, so we cannot, like, if it would be an easy problem, we can like go all over all x's where x is less than equal to k and less than n, and we can calculate the maximum answer if our k's constraints were like less. But our k is 10 raised to power 9, so it shows that we cannot use a linear iteration over this number, so we'll have to find a pattern for these. Okay, so but
what was the pattern? So like if we have to multiply these numbers, okay, because the x mod k values are here and n minus x mod k values are here respectively. Okay, so 2 minus 0 is 0. Oh sorry, 2 0 is 0, 2 1 ja, sorry 1 1 ja 1, 2 0 is 0. Okay, 3 7 ja 21. Okay, 24, 4 6 ja 24, and 5 5 ja it's 25, and 6 4 6 25, 6 4 ja 24. Okay, and then 21. So what we can observe, okay, is that these numbers are like repeating themselves from half. Okay, 24 21 24 and 21, like this. But here's a problem, like they are repeating only from this 0. Okay, this 0 section, and the maximum value is in the middle part. Okay, of these number, the maximum value is in the middle part. ठीक है, तो मतलब बेसिकली हमारा आंसर का है इसके बीच में, मतलब 0 के बाद यहाँ के सेंटर में. ठीक है, और हम अगर जो मैं देखूं यहाँ के भी सेंटर में, ठीक है, इस वाले सेंटर में भी, like let's take another example in which our like this starts from 3. Okay, so to start with 3 we'll have to take 11. Okay, so let's take 4. Okay, no, we start with 4, so we'll have to take 12. Okay, so the n's value, next time this time we take 12, and we try to observe similar things. Okay, now the for this is for 10, and for 12 we'll generate the value here. Okay, for n equal to 12 we'll generate all the values here. For n equal to 12, 12 minus 0 mod 8 will be equal to 0. Oh sorry, mod 8 will be equal to 4. Okay, then these number will go on decreasing. 4 3 2 1. Okay, and 0, and then these number will increase from they will go from 7 6 5. Okay, 7 6 5. Okay, now we multiply all respective elements like x mod k, all these values with these values. Okay, to generate a multiplication column. Okay, we see it a multiplication column. Okay, to observe this and make thing more understandable. So 4 into 0 is 0, 3 1s are 3, 2 2s are 4, and then again 3, and then again 0. Okay, so let's see in this side, is the pattern same? Because we can see that 3 and 3 and 4, so the pattern is repeating itself after this. Okay, from 0 to 0. And after this 0, let's multiply these numbers. Okay, so 4 0 0, and I'm sorry, 2 to the 4, I got lost in the multiplication. 4 0 0, 5 7 ja, it's 35, 6 6 ja 36. Okay, and then it's again 35. Okay, and it's again 35. Okay, so we can also see here that the pattern is repeating itself, and the maximum answer is in the middle part. So always our answer is in the middle part. We can like see here the maximum answers is 0. Like we can see the 0 is the half point of if we take 0 as an pivot. Okay, we fix the 0. Let's fix, like let's see, like we can see it's fixed here for this given test case. So our answer is in the middle part of this length. Okay, our answer is in the middle part of this length. Okay, and also our maximum answer, also this answer is also possible if it's in this side. Okay, so let us see what is our answer. So we can choose 5, x equal to 5 to give us 25, that is the maximum value in case of 10. Okay, and then we can choose x as 6, which will give us 36 in the case of
12. Okay. I'm sorry. Sorry. Okay. So these are the values. Okay. Now only problem is arises whenever like the greater values are always gonna be on this side. Okay. The values that are gonna generate our answer, they are always gonna be below this zero. Okay. वो सारे जीरो से नीचे होंगे जो भी हमारे आंसर में, ठीक है। जैसे इसमें हमारा आंसर बना तो 25 बना, वो जीरो के नीचे ही था। इसमें भी हमारा आंसर बना 36 बना, वो भी जीरो के नीचे ही था। तो हम जीरो के ऊपर वाले की बात क्यों कर रहा हूँ, है ना, कि मैं जीरो के ऊपर वालों की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं जीरो के ऊपर वालों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल के दिन अगर से जीरो यहाँ पर आ जाता है ना, लास्ट में अगर जो मैं बोल दूँ कि जीरो यहाँ पर आ जाता था, ठीक है, और ये नंबर कुछ ऐसे चल रहा था 7 6 5 4 3 2 1 and then 0. So we'll have to like find also for the upper part, the answer for the upper part too. ओके, नाइस, ठीक है। तो अभी तक हमें क्या समझ आया, हमें ये समझ आया कि भाई देखो पैटर्न तो पहले रिपीट होगा, है ना, ये वाला पैटर्न रिपीट होगा इस सेल्फ। एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, और जीरो कहाँ पर आएगा, ये जीरो कहाँ पर आएगा, वो एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो मैक्सिमम हमारा आंसर बनेगा वो पक्का मिडिल पार्ट में बनेगा, है ना, वो कहाँ पर बनेगा, इस हाफ पॉइंट में ही बनेगा, इस मिडिल पार्ट में ही बनेगा हमारा आंसर, है ना। जो 7 6 5 4 3 है तो वो इस पार्ट में बनेगा। अगर जो ऑड है तो करेक्टली मिडिल में बनेगा, इवन है तो अपर मिडिल में बनेगा, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं इवन में 4 एलिमेंट है, ये 1 2 ये है, ठीक है, तो वो इस वाले हाफ में बन जाएगा, है ना। वैसे तो इन दोनों में मैक्सिमम आंसर होगा, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम बोलेंगे कि इसमें मैक्सिमम आंसर, ठीक है। ओके, सो हम निकाले कैसे, हम कैलकुलेट कैसे करें कि भाई जीरो कहाँ पर आ रहा है ना। ये सब वैल्यू हमने ऑब्जर्व तो कर दी, ऑब्जर्व करने तो ठीक है, पर हमें पता कैसे लगेगा कि वैल्यूज कहाँ से आ रही है, क्या है ना। तो वो करने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए, है ना। लेट अस सी कि हम कैसे करेंगे। 10 था, ओके, अगर मेरे पास 2 है तो मैं लास्ट वैल्यू चेक कर सकता हूँ क्या है, यस ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, है ना। अगर जो मेरे पास 2 है तो मैं पता लगा सकता हूँ कि जीरो कहाँ पर है, हाँ मैं पता लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 2 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं हम, और जीरो यहाँ पर है ना, तो जीरो पक्का 2 के डिस्टेंस में ही तो होगा, है ना। सिमिलरली हम यहाँ पर लेते हैं कि भाई जीरो, है ना, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 अगर जो कम होगा तो 4 के डिस्टेंस पे तो जीरो आएगा, हाँ ठीक है, ओके, करेक्ट है। और टोटल नंबर्स कितने होंगे इसमें, टोटल नंबर होंगे जितना हमारा मॉड हो रहा है, जिसके साथ मॉड हो रहा है 8 के साथ मॉड हो रहा है, तो टोटल नंबर्स 8 होंगे, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर से, 8 में से, है ना, 8 नंबरों में से ना, लेट अस सी, 8 नंबरों में से पहले के 4 जो थे, है ना, वो हमारा आंसर नहीं बनेंगे। मैक्सिमम आंसर जो बनेगा अगर जो जीरो एंड में नहीं है ना, जो हमारा मैक्सिमम आंसर बनेगा, है ना, जो हमारा मैक्सिमम आंसर बनेगा, क्योंकि अभी हमारा जीरो एंड में नहीं है, तो वो ये तो नहीं बनाएंगे। 8 में से -4 करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ऑफकोर्स 4 बचेगा, है ना। और कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें इनका मिडिल पार्ट क्या होगा, इनका मिडिल पार्ट होगा ऑफकोर्स दिस दिस पार्ट, ठीक है, ये वाला होगा मिडिल पार्ट, ठीक है। अगर जो मैं इसमें -1 करके भी कर दूं तो मिडिल पार्ट, इन 3 एलिमेंट्स का मिडिल पार्ट 6 होगा, है ना, और इन 4 एलिमेंट्स का मिडिल पार्ट हम आगे वाला ले लेंगे, ठीक है। तो मेरे को पता है इनका मिडिल पार्ट क्या होगा, मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, है ना। 4/2 कितना होगा, इस 4 साइज की एलिमेंट का, है ना, इस 4 साइज की एरे का हाफ कर दूंगा मैं, तो मेरे को पता लग जाएगा कि मिडल से कितना दूर होगा, है ना। मिडल कितना दूर होगा, 4/2 दूर होगा, यानी कि 2 कदम दूर होगा, है ना। और अब मेरे को पता है कि 0 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, ठीक है। या फिर मैं नीचे से भी मिडिल का काउंट कर सकता हूँ। मैं नीचे से कैसे मिडिल काउंट करूंगा, मेरे को पता है 4 होता है, 4 से एक बड़ा 5 होगा, है ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो पक्का इसके जो इसके यहाँ पर होगा एंड में वो 5 होगा, इससे +1 होगा, है ना। तो 5 में, है ना, 5 में अगर जो मैं 2 प्लस कर दूं, ओके, या फिर 4 में अगर मैं 2 प्लस कर दूं, तो मैं नीचे से वहां पर पहुंच जाऊंगा, 6 में पहुंच जाऊंगा, हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। तो मेरे पास ये भी एक आंसर निकालने का तरीका है, ठीक है। तो आंसर कैसे निकलेगा कि पूरा टोटल 8 यानी कि k माइनस जो इसका सबसे पहला एलिमेंट है n mod k,
ठीक है, n मॉड k 4 आ रहा था हमारा इस केस में, है ना। n मॉड k माइनस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा कितनी दूर है जीरो यहाँ से, और इसका डिस्टेंस हमें पता लग जाएगा, और हम वो माइनस कर देंगे k से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर जो हम उस बचे हुए डिस्टेंस का हाफ कर देंगे, है ना, और उसको प्लस कर देंगे इसकी फर्स्ट वैल्यू के साथ, जो कि कैसे करके आ रही है, जो कि आ रही है n मॉड k करके आ रही है ना, n मॉड k के साथ प्लस कर देंगे तो हमको हमारा आंसर, मिडिल वाला आंसर मिल जाएगा, है ना। अब हम एक क्या लेंगे, हमारा आंसर ये मिल सकता है हमें, ठीक है, पॉसिबल है भाई ये आंसर। और हमारा आंसर क्या हो सकता है, और हमारा आंसर हो सकता है जब ये लास्ट पोजीशन में आ जाए ना, जब ये यहाँ पर आ जाए जीरो, तब तो आसान है। पहला वाला आंसर कैसे निकालेंगे, इसका हाफ कर देंगे, इस वाले का हाफ कर देंगे और उसको जीरो में प्लस कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो लेट मी शो यू द कोड। ओके, तो ये कोड है जो मैंने इंप्लीमेंट करा है। तो मैंने क्या बोला कि x इक्वल टू के माइनस वन करो, है ना, कि टोटल मेरे पास एलिमेंट्स कितने थे, क्योंकि 8 तक का मॉड होगा तो 0 से लेकर 7 होगा एलिमेंट्स, है ना। 8 का था, मैंने मॉडुलस 8 तक का ले रखा है, तो 0 से लेकर 7 तक की वैल्यूज है ना, 8 की तो कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। अनदर थिंग मैंने लिया फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, मैंने ये फर्स्ट एलिमेंट ले रखा है, जो इस एरे में सबसे फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो n मॉड के होगा, है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो n मॉड के होगा, और y जो है वो लास्ट एलिमेंट है ना। और 2 में मैं प्लस 3 कर दूंगा तो लास्ट एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर जो मैं y इक्वल टू एल प्लस वन, है ना, इसमें प्लस कर दूंगा तो y निकल जाएगा, और अगर जो y मेरा k के इक्वल आ रहा है तो y इक्वल टू जीरो, तो मैंने ये क्यों करा, लेट्स सी। मैंने क्या बोला था, 7 है ना, ये वाला टेस्ट केस अब जीरो आखिर में होगा, है ना, हम ये वाला लेते, 7 था, 7 में प्लस 1 करा वो 8 बन गया, है ना, बट पीछे 8 तो है ही नहीं, पीछे तो जीरो है, क्योंकि साइकिल में तो जीरो आ रहा है उसके बाद। तो मैंने क्या बोला, जब वो के इक्वल हो जाएगा तो उसको क्या कर दो, जीरो का इक्वल कर दो, ठीक है। अब के, है ना, के माइनस एल बाय टू, ये क्या है, लेंथ एल क्या हो गया कि जीरो कितना हो रहा है ना, माइनस के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, के माइनस एन, के माइनस एन, के माइनस जो स्टार्टिंग में आ रहा है हमारा, है ना, ये जो आ रहा है ये निकाला मैंने, स्टार्टिंग का एल जो है के माइनस एल, ओके, से एल बाय टू करके हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, और इसको अगर हम हाफ कर देंगे तो मेरे को पता लग जाएगा कि ये यहाँ से कितनी दूर है ना, ऑब्वियसली यहाँ से कितनी दूर है तो मेरे को ये पता लग जाएगा, ओके। तो ये v कदम दूर है ना, आंसर जो है वो v कदम दूर है, ठीक है। तो l से l प्लस वी कर देंगे, ठीक है, आंसर में l प्लस वी कर देंगे। मैंने l प्लस वी क्यों करा, क्योंकि ये साइक्लिक बन रहा है ना, मैंने क्या बोलता 4, फिर यहाँ से इसको प्लस कर देंगे तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आंसर, मतलब ये तो हमेशा मैक्सिमम मैक्सिमम होगा ही होगा, बट अगर जो हमारा आंसर, क्योंकि आंसर में से अगर जो हम m माइनस आंसर करेंगे तो वो लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, मतलब कि आंसर की वैल्यू n से बड़ी है ना, या तो y इक्वल टू जीरो है, तब हमें ये वाला आंसर को नहीं देखना है, हमें आंसर 2 देखना है, और आंसर 2 क्या होगा, सिंपली l बाय टू होगा, है ना, फर्स्ट एलिमेंट बाय टू, कैसे, जो फर्स्ट एलिमेंट है 4 साइज की एरे है ये, 4 साइज की एरे को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो 2 आ जाएगा सिंपली, है ना, तो वो सिंपली एल बाय टू आ जाएगा, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।